Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. Now, this is the reading for 15th to 13th or 31st of October for the sign of Cancer. And please remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. And also remember that the energies can always shift. That is, this can be your energy or partner's energy. The roles can always be reversed. And please check your sun, moon, and rising. So this will be in the format of you versus them, यानी कि नेक्स्ट में मैं आपको I'll tell you about your feelings, your person's feelings, and the outcome, and give you some advice. So let's start with the sign of Cancer, my lovely. Let's see what's going on with the Cancer. What are the feelings of Cancer for the next 15 days? What do the Cancers feel, my lovely? What are the feelings of Cancer for the next 15 days? Okay, Cancer, you have got the 8 of Cups, you've got the Temperance in the reverse and the Wheel of Fortune. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कैंसर कि आप इमोशनली डिटैच कर रहे हैं किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से या किसी प्लेस से या किसी थिंग से. बट आई थिंक दिस इज़ द लव रीडिंग, सो यू डिटैचिंग फ्रॉम योर पार्टनर. आप इमोशनली डिटैच कर रहे हैं और आप दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपको ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सके. यहाँ पे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है. विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट व्हील आपका जो है समय बदल रहा है. एंड देयर इज़ अ मेजर अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर लाइफ. ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा यू मे बी हर्ट और देयर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस हियर विद द वर्ल्ड इन द रिवर्स. कोई साइकिल ऐसी जो आपकी इनकम्प्लीट रह गई है या फिर यू हैव नॉट लर्न द लेसन्स वेल. तो यहाँ पे यही शो कर रहे हैं कि आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं. नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून शोज सीजन्स. तो सीज़न बदल रहा है. फ्रॉम फॉल वी आर गोइंग इनटू विंटर. विंटर सीजन आ रहा है. तो फॉर द नेक्स्ट 15 days यू आर इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम यू आर इमोशनली डिटैचिंग. आप इमोशनली अपने पर्सन से कट ऑफ हो रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 days. Now let's see what are the feelings of your partner, my love team. What are the feelings of the Cancer people? What are the feelings of the partner of Cancer? Please give me the feelings of the Cancer people, of the partner of the Cancer. Cancer के partner उनके लिए क्या feel कर रहे हैं? Let's see. Let's clarify the cards have fallen again. All right. So what is the feeling of your person? Okay, Cancer, आपके जो person है, for them we have got the Strength, the Knight of Swords in the reverse, and by the Chariot. This is your card only. तो ऐसा लगता है कि they are, and bottom of the deck you have the Two of Pentacles, Six of Cups and the Lovers. तो आपके पार्टनर को डिसीजन लेनी है. दे वांट टू मूव ऑन, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आपकी इस समय अगले 15 days में विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कोई ऐसा पर्सन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी जिसको वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. और दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड दिस पर्सन इज़ वो कुछ भी एकदम से इम्पल्स पे काम अचानक से कुछ भी कर देते हैं. दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग. सो दैट मीन्स दे कैनॉट ट्रस्ट दिस पर्सन. ये इस चीज़ से उनको डिसीजन लेना है. दे कैनॉट ट्रस्ट दिस पर्सन. यू कुड बी डीलिंग विद अ लियो. लेकिन यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने दे हैव टेकन द पावर बैक. वो विथहोल्ड कर रहे हैं और वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू मूव विद यू. दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद यू. Or they are juggling. They have to take a decision. Six of Cups, somebody from the past, lovers. It was a very close relationship here. So this is what it is telling me कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं. वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं. They are not able to move forward. Let's see what's the outcome.
What is the outcome of the Cancer collective, my love team? What is the outcome for the Cancer people? What is the outcome for the Cancer people, my love team? What is the outcome? The outcome is the Page of Pentacles in the reverse, the Ace of Cups in the reverse and the Two of Swords. So इसका आउटकम ये है कि आप लोगों के बीच में लव सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है. देयर आर नो इमोशंस लेफ्ट और आप दोनों ही क्लोज्ड ऑफ हैं एंड नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट. इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलमोस्ट ब्रेकअप कर चुके हैं एंड आप लोगों के बीच में कोई लव सिचुएशन नहीं है. सो द आउटकम इज़ कि यहाँ पे द लव इज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो or you people are closed off to each other. This is what the outcome of the whole situation is. Now let's see what's the advice. What is the advice for Cancer? What is the advice for Cancer? Okay, आपकी एडवाइस है 3 of Swords, the Empress in the reverse and the King of Wands in the reverse. तो आपकी एडवाइस है कैंसर दैट आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए और यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर ओन सिचुएशन. अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आपका सेपरेशन हुआ है, देन यू शुड एक्सेप्ट इट एज द विल ऑफ गॉड. यू शुड नॉट बी अनहैप्पी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इस रिश्ते पे. तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में या आपके इस रिश्ते में ब्रेकअप आप लोगों को हो चुका है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर. और कोई आपको आपकी गाइडेंस यही है कि अगर कोई पर्सन आपको इस सिचुएशन को देना नहीं चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो यू शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. अगर इसमें पेन होता है, हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, तो उसको होने दीजिए. लेट इट हैपन, लेट दिस गो. लेकिन आपको ये सिचुएशन फेस करनी चाहिए, ना कि आपको सिर्फ अनहैप्पीनेस में. आपको क्लियर होना चाहिए कि या दिस सिचुएशन इज़ डन एंड ओवर. देयर इज़ आपको बहुत पेन महसूस होगा बट देन यू शुड एक्सेप्ट इट कि इस सिचुएशन में फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. फर्दर ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती है, आप दोनों मिल नहीं सकते हैं. सो आपको पेन होगा, येस. आपको सफरिंग होगी, येस. आपको एंजाइटी होगी, येस. आपको बहुत कष्ट होगा, येस. बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. लेट इट बी बिकॉज यू कैनॉट फोर्स एनी वन इन दिस वर्ल्ड जो टू बी विद यू. आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता चलाए और ज़रूर चलाए. So this is what I have for you, Cancer people. Sorry, but this is what it is in the reading, and I hope you got something from this reading. So see you next time. Till then, bye.